Recording has started, ma'am. हाँ जी मैम, वो earlier it was coming कि host has not permitted. Now it's okay. All right. Yes, bete. Very less theory part is there. Very brief topic is there. So very easily we will be able to cover it in the today's meeting. So topic is wholesale price index. ठीक है? Denoted by, in short form, it is denoted by WPI. As we write CPI, Consumer Price Index. Similarly, wholesale price index is denoted by the term abbreviation WPI. So in paper, if these words are written, these alphabets are written, so you have to understand yourself if you are being asked about wholesale price index. So first is ki what is the meaning of this index? Now, wholesale price index means that index which measures the relative or comparative changes in the prices of the commodities traded in the wholesale market. Listen again, what have I said? I am saying wholesale price index is that index number which helps us to measure, which simply measures the changes in the prices of the commodities. Now see the words changes in the prices of commodities. Where are they being traded? They are being traded in the wholesale market. Now first thing, I think in business studies you would have covered this topic. दो तरह की मार्केट होती है. टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर. वन इज कॉल्ड रिटेल मार्केट, वन इज कॉल्ड होलसेल मार्केट. ठीक है. When we ordinary people, you, me, we all people, households, when we go to market, so we don't buy things in wholesale quantity. What are our needs? We buy one commodity, 2 items, 3 items. Simply means in less quantity we purchase. So when we purchase in less quantity, then it is called retail market. But when we purchase any commodity in greater quantity, comparatively lot of items are purchased, then it is called wholesale market. Now I give one example. If you go to market and buy a pencil or pen or geometry box, so how many boxes you will purchase? At the most one. ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोई और यंगर सिबलिंग है तो आप 2 ज्योमेट्री बॉक्सेस यू कैन परचेज. बस इतना से लेते हैं ना, और तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है. तो 1 or 2 आइटम्स सिंपली वी परचेज. तो देन इट विल बी नोन एज रिटेल शॉपिंग. रिटेल मतलब एक आधी चीज़ ही परचेज करते हैं. बट नाउ यू थिंक अबाउट दैट पर्सन who is running his stationery shop, और वो कितनी सारी 100-200 ज्योमेट्री बॉक्सेस लाके वो पर्सन अपनी शॉप पे रखते हैं. तो अब वो जो यहाँ से वो 200 पेंसिल बॉक्सेस या शॉप अपना ज्योमेट्री बॉक्सेस फ्रॉम वेयर एवर ही परचेजेस, तो दैट मार्केट विल बी नोन एज होलसेल मार्केट. And obviously when that person, that shopkeeper is purchasing in this great quantity, 200 तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है because we don't need them. But that person, since he is working as a shopkeeper, acting as a shopkeeper, so he needs more quantity to be kept in his shop. So when he goes to buy those geometry boxes, he will, from wherever he buys, that market will be known as wholesale market, and the price at which he will buy those boxes, that price will be different. And the price at which we people are buying from that person, that price will be different. ठीक है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, मान लो आप एक बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स लाते हो, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ 50 रुपीज़ के लिए. ठीक है. तो हमें तो पड़ा वो 50 रुपीज़ का. अब वो जब वो शॉपकीपर जा रहा है, जहाँ से भी वो ला रहा है 200 ज्योमेट्री बॉक्सेस टुगेदर ही इज परचेजिंग, मान लो 300-200 वो ला रहा है. अब इतने सारे बॉक्सेस लाने के लिए अब वो ही विल नॉट पे 50 रुपीज़ फॉर ईच बॉक्स. ठीक है. अब वो क्या प्राइस देता है? मान लो वो देता है 40 रुपीज़, क्योंकि उसने ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है. तो ज़्यादा क्वांटिटी लेने के करके प्राइसेस थोड़े से कम रखे जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ परचेज हो रही है. अब वो लेता है 40 रुपीज़ पर बॉक्स के हिसाब से अपनी परचेज करता है, और 200 बॉक्सेस वो लेके आ जाता है. ठीक है. तो उस पर्सन का प्राइस वो डिफरेंट है, और जो हम आम लोग हैं एक एक चीज़ करके ला रहे हैं, हम लोगों को वही बॉक्स पड़ा 50 रुपीज़ का, पर वो जब शॉपकीपर ला रहा है तो दैट पर्सन इज पेइंग 40 रुपीज़. क्यों दे रहा है? क्योंकि वो होलसेल में सामान खरीद रहा है, इकट्ठा सामान खरीद रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है, और हम लोग थोड़ी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं. तो यही डिफरेंस है. ठीक है.
So purchase in little quantity, less quantity, that is called retail shopping, जो भी इसको नाम दे लो आप. और जब इकट्ठा परचेज करते हैं, टुगेदर वी बाय मेनी थिंग्स, तो देन इट इज कॉल्ड होलसेल. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो होलसेल मार्केट की हो रही है, हम आम लोगों की बात नहीं हो रही है. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो बड़े बड़े शॉपकीपर्स हैं या स्टोर ओनर्स हैं, जब वो इकट्ठा सामान लेते हैं तो वट एवर प्राइसेज दे आर पेइंग फॉर देयर कमोडिटीज, जो भी बाय कर रहे हैं, तो उन प्राइसेस में रिलेटिवली कितना चेंज आता है, उस चेंज को मेयर करने के लिए जो इंडेक्स नंबर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स. फिर से सुनो मैंने क्या बोला. The commodities which are purchased and sold in the wholesale market, उन प्राइसेस में, उन कमोडिटीज के प्राइसेस में रिलेटिवली कितना चेंज आता है. नाउ रिलेटिवली वर्ड शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू. रिलेटिवली हमारा वो वाला नहीं, वो रिश्तेदार वाला रिलेटिव नहीं है यहाँ पे. रिलेटिव का मतलब कंपैरेटिवली. ठीक है, तो जो भी प्राइसेस वो दे रहे हैं कंपैरेटिवली उनमें कितना चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड, उस चेंज को मेयर करने के लिए जो भी इंडेक्स नंबर जैसे भी बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, अब नाउ यू क्वेश्चन में कम टू योर माइंड कि भी कैसे पता चले किसके साथ कंपेयर करना है. तो इन इंडिया, here we are talking about our own country, in India wholesale price index they are prepared on weekly basis, हर वीक के लिए. ठीक है, जैसे ये वीक चल रहा है तो इस वीक में किसी भी चीज़ों को होलसेल प्राइस जितना भी देके परचेज किया, अच्छा अब नेक्स्ट वीक में उन्हीं चीज़ों को परचेज करने के लिए आगे जितना प्राइस पे करेंगे वो पर्सन जो भी खरीद रहे हैं, दोनों प्राइसेस के, दोनों वीक्स के प्राइसेस को कंपेयर किया जाएगा. ठीक है, इस वीक में जितना प्राइस दिया और अगले वीक में जितना प्राइस देंगे, तो दोनों प्राइसेस को कंपेयर किया जाएगा. अच्छा, अगर तो अगले वीक में मोर प्राइस इज बीइंग पेड, ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, देयर इज इन्फ्लेशन. और अगर नेक्स्ट वीक में प्रेजेंट वीक के कंपैरेटिवली लेस प्राइस इज टू बी पेड, तो हम सिंपली क्या कहेंगे कि जी प्राइसेस कम हो रहे हैं, देयर इज डिफ्लेशन. आम बोलचाल में हम यही बोलते हैं. ठीक है, और सिंपल इन द लैंग्वेज ऑफ ए ले मैन, ऑर्डिनरी पर्सन, हम कह देते हैं चीज़ें महंगी हो गई, चीज़ें सस्ती हो गई, ये चीज़ें हम, ये बात हम बोल देते हैं. ठीक है, सो एनी हाउ वो हम बाद में करते हैं. सो सिंपली होलसेल प्राइस इंडेक्स मीन्स दैट इंडेक्स नंबर which helps us to measure the changes in the prices of commodities traded in the wholesale market. ठीक है, ट्रेडेड वर्ड का मतलब होता है, ट्रेड होता है खरीदना बेचना, बाइंग एंड सेलिंग. तो जो होलसेल मार्केट में जो भी चीज़ों की सेल परचेज होती है, जिन प्राइसेस के ऊपर होती है, उन प्राइसेस को उनका कंपैरिजन करना है. तो जिस मेथड से किया जाता है दैट इज कॉल्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग और डेफिनेशन. तो इन इंडिया अब क्या है, ये हमारे कंट्री में ऑन वीकली बेसिस दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड, हर हफ्ते बनाया जाता है. तो अब आप देखो साल में कितने वीक्स होते हैं, सारे मंथ्स में ऑन एन एवरेज 4 वीक्स मान लेते हैं हम लोग, किसी मंथ में 5 भी होते हैं, तो कर कर आके 51 के अराउंड 51 या 2 वीक्स होते हैं पूरे साल में. तो उनको सभी के लिए निकाला जाता है, हर वीक के लिए निकाला जाता है. फिर साल के एंड में, ईयर के एंड में उन सारे जो इंडेक्स नंबर आए हैं उनकी एवरेज निकाल ली जाती है. फिर एवरेज निकाल के फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर हम बोलते हैं कि जी पिछले साल इतने प्राइस थे, अगले साल बढ़ गए हैं तो कह देते हैं इन्फ्लेशन हो गया, या कम हो जाते हैं तो देन वी से डिफ्लेशन हो गया. ठीक है, मतलब पहले वीकली निकालते हैं, फिर वो सारे वीक्स को ऐड करके पूरे साल के लिए एवरेज निकाल लेते हैं ना, जैसे सिग्मा एक्स बाई एन सिंपल मेथड, तो ऐसे निकालते हैं. ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन. अब है कि हमारे कंट्री में अब इनको निकालने के लिए 2004 और 5 को, 2004-5 जो फाइनेंशियल ईयर है, दैट इज यूज्ड एज बेस ईयर. ठीक, तो दैट ईयर इज बीइंग यूज्ड एज बेस ईयर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. बट स्टिल आई थिंक सम चेंज मे ऑल्सो बी देयर. 2011-12 के prices are also being considered, so that this I need to check. You can also check in the books of new edition also. So means simple words में meaning is कि firstly government decides about the base year. Earlier it was 2004 and 5, but now I think so there may be change with this 2011 and 12. Okay? But this is not compulsory to be written in the answer. Simply we can say on weekly basis. अब है नेक्स्ट है कमोडिटी ग्रुप एंड वेटेजेस. अब इसका मीनिंग ये है, लेट मी शो. यस, पिक्चर इज नॉट वेरी क्लियर बट यू कैन सी इन योर बुक, इट इज गिवन देयर ऑल्सो, यू कैन सी, प्लीज चेक योर बुक्स. वन टेबल इज गिवन. अब क्या है, पूरे कंट्री में जो आम चीज़ें हैं, कमोडिटीज हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, तो 3 पार्ट, प्लीज यू, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सी इन योर बुक ऑल्सो अलोंग विद दिस.
फर्स्ट इज कमोडिटी ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का नाम दे दिया जाता है. देन नंबर ऑफ कमोडिटीज मीन्स विच कमोडिटीज आर इंक्लूडेड दैट इज गिवन. एंड थर्ड प्लेस पे वेटेजेस आर गिवन, वेट्स, इंपॉर्टेंस, परसेंटेज इज गिवन. ठीक. सो इन आवर कंट्री फर्स्टली 3 broad categories have been made. प्राइमरी आर्टिकल्स, प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या आता है, एडिबल चीज़ें जो होती हैं, खाने पीने का सामान या और नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड, मोस्टली edible items, but non-edible items can also be there. As you can read, it includes 98 items. ठीक है, prominent सारी नहीं है. अब आपने now you don't feel कि भाई all the items are not written. These items have been selected by the government. Concerned department has selected the items. So 98 items are there, mainly fruits, rice, pulses. Some examples are given. Vegetables, ये तो हो गई edible food items, खाने पीने का सामान. ठीक है. And non-food articles like cotton, jute, metals, etc. नॉन फूड मतलब इनको हम खाते नहीं है, किसी और तरह से यूज करते हैं. ठीक है. तो आइटम्स कैन बी फूड आइटम्स एज वेल एज नॉन फूड आइटम्स, एडिबल और नॉन एडिबल आइटम्स. अब इनको वेटेज दिया गया है 22.02 वेटेज हैज बीन गिवन. ठीक है. मतलब इस वेटेज आई अर्लियर टोल्ड इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, भाई इस कैटेगरी की आइटम्स को ये इम्पोर्टेंस दी है 22.02. ठीक. Second items are related to fuel, power, light and lubricants. अब आप ध्यान से देखो, ये ज़्यादातर चीज़ें जो है हाउस होल्ड में भी यूज़ होती हैं, नो डाउट. फ्यूल, पावर, लाइट हम घरों में भी यूज़ करते हैं. लुब्रिकेंट्स एटसेट्रा ये आमतौर पे फैक्ट्रियों में यूज़ होता है ये सारा सामान. मतलब एट ए मोर रिक्वायरमेंट इज़ देयर. इलेक्ट्रिसिटी उतनी हम घरों पे यूज़ नहीं करते जितनी फैक्ट्रियों में चाहिए, है ना. पावर हमें, लाइट इतनी घर पे नहीं चाहिए होती जितनी किसी फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चाहिए होती है. सो दीज आइटम्स आर देयर. अब इसके अंदर हाउ मेनी आइटम्स हैव बीन केप्ट? 19 आइटम्स. दीज वैल्यूज यू हैव टू लर्न. 19 आइटम्स कौन कौन सी हैं? कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी जो गैस होती है घरों पे यूज करते हैं, ये सारी आइटम. एंड व्हाट वेटेज इज गिवन? 14.23. ठीक. दिस इज सिंपल टेबल टू बी लर्न. ओनली नेम्स ऑफ आइटम्स एंड वेटेजेस आर गिवन. ठीक है. लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग. थर्ड ग्रुप हैज बीन मेड मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स. ये हो गया एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड. दिस इज मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है. तो इन दिस 318 आइटम्स, मैक्सिमम आइटम्स आर इंक्लूडेड. विच आर दोज? टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, लेदर एटसेट्रा. If you are unable to learn all examples, no problem, you can learn any 3-4 examples. ठीक है. 3-4 भी नहीं होते, please at least learn 2 examples. 2 तो minimum है, they should be learned. And weightage कितना दिया हुआ है? Maximum weightage 63.75. Why this maximum weightage is given? Because manufacturing involves more significance, means in our life as compared to primary products. In these days, in our modern lifestyle, more importance of manufactured items is there. है ना. अब आप सोच के देखो एक मिनट के लिए, सारा दिन हम खाते पीते नहीं रहते हैं, है ना. मान लो एट द मोस्ट 3 times खा लिया, इन बिटवीन भी कुछ खा लिया, नो प्रॉब्लम, नॉट ए बिग इशू. बट सारा दिन हम मोबाइल पे बैठे हुए हैं, लैपटॉप के ऊपर बैठे हुए हैं. इसका मतलब क्या हो गया? हम इन ये मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं. नो डाउट खा भी रहे हैं बट उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, है ना. तो ऐसे ही यहाँ पर है कि इन अवर डेली लाइफ किन चीज़ों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसको ज़्यादा वेटेज है, किसकी कंपैरेटिवली कम हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस है, उसको कम वेटेज है. तो सिंपली दिस टेबल इज टू बी लर्न बाय यू. आपको ये भी आ सकता है कि नेम द कमोडिटी ग्रुप्स और प्रिपेयर द टेबल ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, देन फुल टेबल इज टू बी ड्रॉन. 1 mark में क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी 2-3 commodities of commodities which are there in primary articles, या give examples of items of manufacturing items, किसी भी वे से. ठीक है. 1 mark में या 3 marks में in any form question can be asked. Now बस this is only this part. Next is uses. This is important. Uses of wholesale price index. Uses, or you may write the word importance. ये important है. कहने का मतलब कि what is the significance, कि why do we make study of WPI, क्या ज़रूरत है इसकी स्टडी करने की. This is the meaning of the term. Now first is forecasting demand and supply. Forecasting होता है prediction. You would have heard one word, आपके फ़ोन के ऊपर या टीवी में हम न्यूज़ में आते हैं ना, वेदर फोरकास्टिंग. तो वेदर फोरकास्टिंग का मतलब क्या?
कि टुमारो व्हाट टाइप ऑफ वेदर विल बी देयर या इन द नेक्स्ट वीक व्हाट टाइप ऑफ वेदर विल बी देयर, है ना, प्रिडिक्शन करना। तो फोरकास्टिंग मीन्स प्रिडिक्ट करना, पता लगाना कि आने वाले टाइम में व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक, अभी सप्लाई कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया है, आगे करेंगे। डिमांड के बारे में तो यू हैव ऑलरेडी रेड, बट आई थिंक यू रिमेंबर थ्योरी ऑफ डिमांड टॉपिक किया ना, तो दैट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड। anyhow, but यहाँ पे we are not concerned with individual demand, we are concerned with aggregate demand of the economy। ये नेक्स्ट ईयर आप डिटेल में करेंगे, अभी के लिए इतना ही बता देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ ऑल द कमोडिटीज मेड बाय ऑल द कंज्यूमर्स इन ए कंट्री इन 1 ईयर। ठीक, जितने भी लोग हैं, total number of consumers people in the country, whatever total demand of all the commodities they are making in the economy in 1 year, that is called aggregate demand। ठीक, similarly supply का यहाँ पर मीनिंग है, supply means supply of all the commodities made by all the producers in the economy in 1 year। ठीक, मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में, हम सारे ही लोग कंट्री के अंदर रहने वाले टोटल जितनी भी चीज़ों की डिमांड करते हैं उसको कह देते हैं एग्रीगेट डिमांड। और अब उस डिमांड को पूरा करने के लिए आप देखते हो मार्केट्स में कितने लोग बेचते भी तो हैं, दे आर सेलिंग द कमोडिटीज। तो जितने भी सेलर्स हैं, प्रोड्यूसर्स कम सेलर्स, बना के बेचने वाले, ठीक, यहाँ पर हम एक ही नाम ले लेते हैं, मान लो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं जो सेल भी कर रहे हैं, तो वो टोटल जितनी भी चीज़ों को बना के बेच रहे हैं मार्केट में, सबको इकट्ठा कर दें, इफ वी ऐड देम तो कह देंगे एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स टोटल। तो सिंपल यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई का मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इट टेल्स अस अबाउट द टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई विच कैन बी देयर इन द नेक्स्ट ईयर। अब कैसे पता चले? अच्छा, अब आप देखो, अब सिंपली सोच के देखो, इफ देयर इज मोर एग्रीगेट डिमांड इन द प्रेजेंट ईयर, ज़्यादा लोग, पीपल आर डिमांडिंग ऑल द थिंग्स इन ग्रेट क्वांटिटी, सभी जा रहे हैं मार्केट्स में, ऑल आर बाइंग, बड़ा ट्रेंड हो गया, सब चीज़ों की ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोड्यूसर्स कैन फील, भाई इस साल इतनी सेल हुई है, हमारी इतनी चीज़ों की डिमांड हो रही है, तो नेक्स्ट ईयर भी ऑब्वियसली दे विल फील कि भी नेक्स्ट ईयर ऑल्सो डिमांड विल इंक्रीज। एक अंदाज़ा जिसको बोलते हैं ना, अंदाज़ा लगाना, गैस करना कितना लोगों का ट्रेंड हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस दिस डिमांड, जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर एक्सपेक्टिंग मोर डिमांड इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सिमिलरली जो सप्लाई कर रहे हैं, सेलर्स हैं, अगर उनका इस साल में मैक्सिमम थिंग्स आर गेटिंग सोल्ड, सब सामान सेल हो रहा है, बिक रहा है, तो क्या उम्मीद करेंगे, व्हाट विल दे एक्सपेक्ट? अगले साल भी उम्मीद करेंगे कि हमारा ज़्यादा सामान सेल होगा, कोई भी एक नॉर्मल टेंडेंसी है। ठीक है, तो यही पर यहाँ इसका मीनिंग है कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कम्स मोर, इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, तो उसका मतलब है कि पीपल आर मेकिंग मोर डिमांड, सो प्रोड्यूसर्स दे एक्सपेक्ट कि इन द नेक्स्ट ईयर द डिमांड फॉर देयर कमोडिटीज विल बी मोर एंड दे विल प्रोड्यूस मोर। तो उसी डिमांड को ध्यान में रख के वो ज़्यादा प्रोडक्शन करके सप्लाई भी करेंगे। कैसे उनको इंट्यूशन हुआ, हाउ विल दे कम टू नो अबाउट दिस? दे विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक, इसका भी आप ऐसे समझ लो, बेसिस है मान लो 100, अगर होलसेल प्राइस 100 से ज़्यादा आता है प्रेजेंट साल में एवरेज निकाल के, तो अगले साल में मोर एक्सपेक्टेशन इज देयर, मोर डिमांड एंड सप्लाई की एक्सपेक्टेशन होगी। और अगर प्रेजेंट ईयर में कम वैल्यू आती है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में लेस डिमांड होगी। ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई दे डिपेंड ऑन ईच अदर। रीज़न क्या होता है उसका, जो सेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं सारे कंट्री के, वो उतना ही सामान बनाते हैं जितना उनका सेल होता है। आप सोच के देखिए, थिंक फॉर ए वाइल, इफ द शॉपकीपर्स और सेलर्स, नोबडी गोज टू मार्केट, कोई सामान नहीं उनका सेल होता है, तो दे विल नॉट फील एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर। ठीक है ना, आप सेलर हो, आपकी दुकान पे कोई आ ही नहीं रहा है, nobody is coming and nobody is buying anything, then you will feel depressed, you will feel bad, my things are not getting sold, I am not getting even my cost covered, कुछ मिल ही नहीं रहा है, no profit is there, you will feel discouraged, है ना। तो there will be, you will make less production, क्योंकि आपका तो पहला ही नहीं सेल हो रहा है। बट if opposite happens, लोग आ रहे हैं, आपका सारा सामान बिक रहा है एज अर्ली एज पॉसिबल, यू विल फील वेरी हैप्पी इन द कैपेसिटी ऑफ ए सेलर। यू विल से भी हाँ जी मेरा सामान सेल हो रहा है, अब मैं और प्रोडक्शन करूं और बना के रखूं ताकि मेरी चीज़ें बिक रही हैं, सेल हो रही हैं, मतलब ये एक न्यू नॉर्मल टेंडेंसी है। तो दिस इज
forecast by the help of this wholesale price index. Second is indicator of rate of inflation. Indicator of rate of inflation का meaning है, now I have told you earlier also, inflation word means general rise in price level. Okay? एक आम normally सब चीज़ों के on an average सब चीज़ों के जब price normally market में बढ़ते हैं तो at that time we say कि भी there is general rise in price level और we say there is inflation, महंगाई जिसको बोल देते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं. ठीक, अब उसको कैसे पता चले कि उस इन्फ्लेशन का रेट क्या है, at which rate, rate means speed, at which speed prices are increasing. तो that thing is also explained with the help of wholesale price index. ठीक है, अब वो कैसे, how do we come to know, कैसे पता चलता है with the help of this, तो उसका फॉर्मूला क्या है, that is written in the book also. Rate of inflation that is equal to change in wholesale price index of two respective weeks divided by wholesale price index of first week into 100. अब इसका मीनिंग, डोंट वरी, नथिंग इज डिफिकल्ट. यू सी योर बुक, आई टेल यू विद द हेल्प ऑफ दैट एग्जांपल. प्लीज सी इन ए बॉक्स इट इज गिवन ना व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. तो उसमें देखो A1 A2 करके लिखा हुआ है एक फॉर्मूला. ठीक, अब मान लो जो A1 है दैट इज द, आई होप यू ऑल आर हैविंग बुक्स विद यू. फॉर्मूला देखिए जरा, व्हाट फॉर्मूला इज रिटन, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय A1 into 100. ठीक है, A1 मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वीक. कोई भी आप वीक मान लो, एक वीक का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका नाम रख दिया A1. ठीक है, ऐसे ही सेकंड जो वीक आया उसका होलसेल प्राइस इंडेक्स का नाम रख दिया A2. अब क्या करना है, दोनों का डिफरेंस, टू कंसेक्टिव वीक्स के होलसेल प्राइस इंडेक्स का डिफरेंस निकाल लेना है. तो हाउ विल वी फाइंड द डिफरेंस, A2 माइनस A1. ठीक है ना, सेकेंड वीक का इंडेक्स माइनस फर्स्ट वीक का इंडेक्स. कौन सा इंडेक्स, होलसेल वाला, होलसेल प्राइस इंडेक्स. दैट मीन्स दैट इज चेंज. टू कंसेक्टिव वीक्स के WPI में कितना चेंज आया, A2 माइनस A1 जो बुक में लिखा हुआ है. इन प्लेस ऑफ दैट आई हैव रिटन हियर चेंज इन WPI ऑफ टू रिस्पेक्टिव वीक्स. ठीक है, साथ साथ में जो दो वीक्स आए हैं. अच्छा, अब उसको डिवाइड किससे करना है, बुक में लिखा हुआ है A1. A1 मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वीक, ठीक, इनटू 100. अब आप ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो आपको याद आएगा, वी हैव ऑलरेडी डन वन कॉन्सेप्ट ऑफ ED. उसमें एक लिखा था ना, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आता है, डेल्टा Q बाय Q. उसके बाद डिवाइड किया था डेल्टा P बाय P, है ना, याद है ना. तो सेम वे ही है यहाँ पे. ये क्या है, चेंज इन WPI, दैट मीन्स डेल्टा, चेंज कितना आया, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वीक. फर्स्ट वीक मतलब ओरिजिनल, चेंज ये हो गया चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. जितना भी आंसर आएगा परसेंट में तो दैट विल बी अवर रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक, कि इतना भी, इतने रेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है. तो दैट मीन्स कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस इन्फ्लेशन रेट वी नीड द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स. इसकी जरूरत पड़ती है. तो दिस इज इट्स इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस. थर्ड इज, see, lot of detail is not required, in short we have to tell. ठीक है, so in case you are not able to learn all the lines, no problem, briefly you can learn important lines only. Next is estimation of monetary value and real value. अब इसका मीनिंग क्या है, फर्स्टली यू शुड नो द मीनिंग कि मॉनेटरी और रियल का मीनिंग क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन टू अंडरस्टैंड. मान लो हमने निकालना है नेशनल इनकम. ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय NY. NY stands for national income. ठीक, अच्छा, अब है एक टर्म है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस. ठीक, ये वैसे बेसिकली ये आपके 12th का सिलेबस है, उसमें टर्म आएगी, एक्सप्लेन तब ज़्यादा होगा. अभी के लिए हम इतना मेन समझ लेते हैं. नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस. तो अदर नेम फॉर दिस नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस इज मॉनेटरी नेशनल इनकम. ठीक है, जैसे हमारे दो नाम होते हैं ना, घर पे कोई और नाम है, स्कूल में कोई और नाम चल रहा है, तो सेम वे बात तो एक ही है, चाहे उसको कह दें नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और द सेम थिंग कैन बी नोन एज मॉनेटरी नेशनल इनकम. ठीक, अच्छा, सेकंड होता है नेशनल इनकम एट बेस ईयर प्राइसेस. दूसरी एक सेकंड टर्म है एट बेस ईयर प्राइसेस. तो जो बेस ईयर प्राइसेस के ऊपर नेशनल इनकम होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम. ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड. national income at base year prices, that is called real national income,
and national income at current prices, that is called monetary national income. Acha. Now come to these words, current prices and base year prices. Now you remember, already we have done the numericals. Current year prices क्या होते हैं? Prices of the comparatively new year, है ना. जैसे हमने क्वेश्चन किया कि फाइंड इंडेक्स फॉर 2018 ऑन द बेसिस ऑफ 2011 प्राइसेस. तो 2011 हो गया बेस ईयर और 2018 हो गया करंट ईयर, अभी जैसे हमने पीछे न्यूमेरिकल्स किए हैं. ठीक है, तो जो करंट ईयर प्राइसेस है वो जो भी कंपैरेटिवली न्यू ईयर है उसको, उसके प्राइस को बोलते हैं. और बेस ईयर प्राइस जो भी हमारा कंपैरेटिवली ओल्ड ईयर है, प्रीवियस ईयर है, उसको बेस ईयर प्राइस बोलते हैं. अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे. ये आपने लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए आई हैव मेड दिस टेबल, दिस एग्जांपल. अदरवाइज आपने सिंपली 2 लाइंस ही याद करनी है. नाउ कम हियर. मान लो निकालना है हमने जीडीपी. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. मींस जितनी भी कंट्री में चीज़ें बनी हैं एक साल में, उन सब की मार्केट वैल्यू कितनी है. ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन 1 ईयर. मीन्स इन इंडिया 2000, अभी 20 चल रहा है तो 20 को नहीं लेते, मान लो 2019 में टोटल जितना भी सामान बना उन सब की मार्केट वैल्यू, उसको कह देते हैं जीडीपी. ठीक है. अच्छा, अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्राइस इनटू क्वांटिटी. ये कैपिटल पी प्राइस, ये क्यू मीन्स क्वांटिटी. भी कितनी चीज़ें बनी हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना उनके रिस्पेक्टिव प्राइस के साथ. ठीक, तो हम उसको ब्रॉडली लिख दिया. ऐसे कई चीज़ें मैंने यहाँ इलेबोरेट नहीं किया है, बट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन 10th क्लास. दोज हू वर देयर इन माय सेक्शन एटलीस्ट दे रिमेंबर. कंट्री के अंदर पेंसिल भी बनी है, पेन भी बना है, बुक्स भी बनी है, स्पून भी बना है, टेबल भी बना है, चेयर भी बना है, कितनी चीज़ें बनती हैं, शिप भी बना है, एक स्टेपलर की पिन भी बनी है. सो मेनी थिंग्स आर देयर. तो कैसे करें फिर उसको? कंपेयर तो नहीं कर सकते, एक छोटी चीज़ है एक बड़ी है, हर एक की अपनी नेचर है, वी कांट कंपेयर. तो व्हाट इज़ डन, हर एक चीज़ की क्वांटिटी को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मान लो कंट्री में बनी है 10 पेंसिल्स बनी है, 2 रुपीज़ प्राइस है ईच पेंसिल का, तो कितना हो गया? 2 × 10 20. मनी निकाल के, मनी वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड. फिर उसके बाद नोटबुक्स बनी है, 10 नोटबुक्स बनी है, 10 रुपीज़ प्राइस की ईच, तो 10 × 10 100 हो गया. ऐसे हर एक चीज़ की प्राइस इंटू क्वांटिटी कर लेते हैं, बाद में सबको ऐड कर दिया जाता है, तो हमारे पास आ जाता है भी टोटल इतनी मनी के इक्वल, इतनी वैल्यू के इक्वल हमारा सामान बना है. ठीक है, तो ब्रॉडली आई हैव रिटन हियर प्राइस इंटू क्वांटिटी. अब मान लो प्रोडक्शन हुई है 10 आइटम्स की और प्राइस है 20, करंट ईयर का प्राइस. ठीक है, तो वैल्यू कितना हो गया? 20 × 10 200. तो 200 will be known as monetary national income. Why? Because here this price 20, this is the price of current year. ठीक है, हमने करंट ईयर के प्राइस के ऊपर इसको मल्टीप्लाई करके we have got the value. One case. Now second case can be, अब जीडीपी निकालना है हमने. अब हमने क्या किया? क्वांटिटी तो उतनी ही है, 10 चीज़ें ही लेनी है जितनी प्रोडक्शन हुई है, but we are calculating the value of these 10 items on the basis of price of some base year. मतलब जो करंट ईयर है उसका प्राइस नहीं लिया, ये 20 नहीं लिया, rather we have taken this 15 रुपीज़. वैसे लिख दिया मैंने, एग्जांपल है, कोई एक्चुअल नहीं है. ये 15 रुपीज़ प्राइस लिया. मान लो ये जो भी हमने बेस ईयर होगा हमारा 2011 12 जो भी है, उसके प्राइस को लेके प्रोडक्शन इस साल की, प्राइस किसी पुराने साल का. ठीक है, ये प्रोडक्शन भी इस साल की और ये प्राइस इसी साल का, ऐसे समझ लें सिंपल वर्ड्स में. ठीक, करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का ही प्राइस, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी नेशनल इनकम. ऑन द अदर साइड अगर हम ऐसे निकालें कि प्रोडक्शन प्रेजेंट साल की, करंट ईयर की, और प्राइस हम किसी भी पुराने साल का, जो भी वट एवर वी हैव डिसाइडेड एज बेस ईयर, अगर उसका प्राइस लेके फिर करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, देन वी आर गेटिंग 15 × 10 150. दिस इज कॉल्ड, दिस विल बी नोन एज रियल नेशनल इनकम. ठीक है, मीनिंग क्या हुआ? बिकॉज दिस वैल्यू वी हैव गॉट बिकॉज वी हैव टेकन दिस प्राइस ऑफ बेस ईयर, जो हमारे लिए है 15. तो मीनिंग ये सारे पूरे स्टोरी का ये है कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये जीडीपी और यहाँ मैंने लिखा नेशनल इनकम, डोंट वरी, कोई भी टर्म हो सकती है, इसकी जगह हम नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं. I have not written because abhi you are not familiar with all these terms, so only to make the things simple to you, that's why I am using the simple terms with which you are familiar. Okay, details will be done next year in 12th class. So in all the calculation of all these values, what is the most important thing? ये price. ठीक है, ये जो प्राइस है ये होलसेल प्राइस है, रिटेल प्राइस नहीं है.
ऐसे ये वाला जो प्राइस है ये भी बेस ईयर का होलसेल प्राइस है। तो मतलब ये हो गया कि जब भी हमने किसी भी टर्म की नेशनल टर्म्स इनको बोलते हैं, नेशनल एग्रीगेट्स बोलते हैं, चाहे जीडीपी है, चाहे नेशनल इनकम है, चाहे कोई भी और टर्म है, व्हेन वी वांट टू एस्टिमेट कैलकुलेट देयर मनीटरी वैल्यू और रियल वैल्यू एट दैट टाइम वी नीड द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इनकी कैलकुलेशंस में, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन में जहाँ जहाँ भी प्राइस आता है वो कौन सा प्राइस है, दैट इज होलसेल प्राइस। तो सिंस होलसेल प्राइस इंडिसेस आर यूज्ड, दैट इज व्हाई this is the important point of this wholesale price index. This is the use or utility. I hope these points are clear. In the book, all these are given. These 3 points are given in full paragraphs, long paragraphs are given. You don't have to write full paragraph, just read for understanding. But for the purpose of paper, you have to write only two lines only. 2 lines, 2 or 3 lines, but not more than that. Okay? और ये part is important. This can be asked separately also because it is given in syllabus separately, this rate of inflation. तो यहाँ पे आपको you may get a separate question, how is rate of inflation calculated? तो फिर you have to make use of this formula. Once you go through the example which is given in the book, it will be very easy for you to understand. Okay? So anyhow, time is only 2 minutes are left, so we will not be in a position to solve the numerical. No problem, we will do tomorrow. Tomorrow again, because I wanted to complete this chapter. 2 holidays have come in this week. एक 15th August आ जाएगा, एक पहले हो गया, एक दिन क्लास नहीं होती है. So I don't want to extend the topic unnecessarily. So that's why I have tried to cover the theory part first. Okay. Tomorrow again, one part is left, uses of index numbers. Firstly, we will do that part. उसके बाद में टाइम बच गया तो then we will do numerical. ठीक है जी, hardly 1 or 2 numericals more are to be done. Otherwise, in the book, in the exercise as well as in the solved questions, please attempt these. ठीक है, जो बाकी का एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है वो नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी के न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं. ओनली दोज न्यूमेरिकल्स विच आर रिलेटेड विद अवर सीपीआई, तो वही वाले न्यूमेरिकल्स करने हैं. ठीक है, तो ये नहीं घबराना कि इतना काम दिया और हमने किया नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो इस करके हम वो करेंगे नहीं. जहाँ जहाँ भी रिक्वायर्ड है आपको बताने के लिए, दैट सर्टेनली आई एम टेलिंग साइड बाय साइड. ठीक है, so with this I take your leave. Today's homework is revision and learning of all this wholesale price index. Okay, so thank you all, and please tell your friends to be attentive. All are not attending the classes, so at least they can take help of the videos, recorded sessions which are being sent. At least you can make use of them, right? Thank you all. Sukhjeet ma'am, now you can end the meeting. Thank you.